Hello dear students, myself Professor Deepika Chauhan at Maratha Vidya Prasarak SVKT College, Deolali Camp, Nasik. So today we are going to discuss our FY BCom subject Consumer Protection and Business Ethics, and in that topic we are discussing today's consumerism, rationale of consumerism and importance of consumerism. So today's our session agenda, that is meaning of consumerism, rationale of consumerism and importance of consumerism. So before we started meaning of consumerism, let's we discuss what is consumer. So we can say that we all are consumer because we all are purchase different kinds of goods and services in our daily life. So if we discuss the definition of consumers, so consumer is a person who buy goods or services for their own use. एक ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है फॉर देयर पर्सनल यूज़, फॉर देयर ओन यूज़, सो दैट इज़ कंज्यूमर. सो वी कैन से दैट वी ऑल आर कंज्यूमर. हम हर रोज़ कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज जो है वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करते रहते हैं. सो नाउ we discuss the meaning of consumerism. So consumerism means the welfare of consumer by safeguarding their rights, by giving protection to them from restrictive trade practices and unfair trade practices by the well organized and trained seller, traders and manufacturer of the goods and services. So अगर हम consumerism का मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन अगर डिस्कस करेंगे, सो वी कैन से दैट कंज्यूमरिज्म मीन्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेल ऑर्गेनाइज सेलर, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कई ऐसे सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अनरेस्ट्रिक्टेड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं अगेंस्ट कंज्यूमर. सो कंज्यूमर्स को उनसे प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ कंज्यूमरिज्म. सो वी कैन से दैट कंज्यूमरिज्म मीन्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स to protect consumer from the sellers or manufacturer who are doing unrestricted or unfair trade practices. Now we are discussing our next point, that is the rationale of consumerism. So first we discuss the rationale of consumerism. That is, the first point is organizing program for literacy. Second, rationale of consumerism, that is eliminate number of middlemen. Third, rationale of consumerism, that is the effective implementation of laws. Next, consumer education. Fifth, negligence of safety rights. Next, protection from international pressure. Seventh, rationale of consumer, that is lack of organized consumer. And the last rationale of consumer, that is right to control pollution and fundamental needs. So let's we discuss this rationale of consumerism one by one. So first, rationale of consumer, that is organizing program for literacy. So many people in India are still illiterate. They do not have knowledge of their rights. This results in the exploitation of consumer by businessmen or traders. So it is the important to educate people and make them literate for purchasing purpose. So this is the one of the most and important thing, that is ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम फॉर लिटरेसी. कई बार हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वो अनअवेयर रहते हैं अबाउट देयर राइट्स. दे डोंट नो व्हाट इज़ देयर राइट्स और व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो डे टू डे बढ़ रहा है. कई ऐसे सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कंज्यूमर की जो इलिटरेसी है उसका गलत फ़ायदा उठा के उनसे उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता है. सो अगर हम रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं तो कंज्यूमरिज्म में कई बार जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो कंज्यूमर है उनको उनके जो राइट्स हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में अवेयर किया जाए. सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम फॉर लिटरेसी. नाउ द नेक्स्ट rationale of consumerism, that is the eliminate number of middlemen.
consumer are being exploited by the middleman and manufacturers. Consumer is a person who ultimately bear all the burden of excessive charges and unreasonable profit margin charged by the middleman engaged in their distributive channel. This result in the unreasonable prices of the goods and services. So this is also the another थिंग कि जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो डे टू डे बढ़ रहा है कि जो कंज्यूमर इज हम कई बार देखते हैं जो नंबर ऑफ मिडल मैन होते हैं जिन्हें हम एजेंट भी कह सकते हैं या फिर उन्हें ब्रोकर भी कह सकते हैं, कई बार जो है वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन जो है उनसे किया जाता है. सो कई बार हम देखते हैं कि जो मिडल मैन है, एजेंट है, ब्रोकर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो दोनों ही मिलकर कंज्यूमर को जो है वो कई बार एक्सप्लॉयट करते हैं. कई बार अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो क्या करते हैं, तो वो बेसिकली जो मिडल मैन है, जो एजेंट है या फिर जो ब्रोकर है उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं एंड देन वो प्रोडक्ट जो है परचेस करते हैं. तो मिडल मैन जो है वो भी उनसे कंज्यूमर से कई बार जो है वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो करते हैं. सो बेसिकली ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का फ्रॉम द मिडल मैन और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उन्हें एलिमिनेट करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म के थ्रू किया जाता है. सो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैशनल, दैट इज द एलिमिनेट नंबर ऑफ मिडल मैन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज effective implementation of laws. The government has passed various statutory regulations to protect consumer, but consumer are not protected from the fraudulent practices and exploitation. It is because of ineffective implementation of status and corruption. To remove this, implementation machinery must be strong and effective. हम कई बार देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे वेरियस लॉज, रेगुलर एक्ट्स जो है वो पास किए हैं ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो किया जा सके. बट जो गवर्नमेंट के जो लॉज है, कई बार उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जितने अच्छी तरीके से होना चाहिए वो होता हुआ हमें नहीं दिखता. सो कई बार ये देखते हैं कि कई जो करप्शन है, दिस इज़ द मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट कि कई बार जो है जो गवर्नमेंट के जो एक्ट्स है या फिर गवर्नमेंट के जो लॉ है उन्हें अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो डे टू डे बढ़ता रहता है. सो इसीलिए अगर हम कंज्यूमरिज्म की बात करें तो कंज्यूमरिज्म ये मेक श्योर करता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉज पास किए हैं, गवर्नमेंट के जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसका किया जाए. नाउ द नेक्स्ट रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म, दैट इज़ द कंज्यूमर एजुकेशन. So consumer is exploited because of lack of proper education and rational thinking among consumer. Consumer are not aware about their right. They accept situation without showing any grievance against it. So there is a need to educate consumer to fight for their rights. So this is the important thing for any consumer कि कंज्यूमर को जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए उन्होंने अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कंज्यूमर एजुकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रोकना चाहते हैं तो उसके लिए कंज्यूमर का एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कंज्यूमर को उनके जो राइट्स है उनके राइट्स के बारे में अवेयर होना उतना ही इम्पोर्टेंट है. कई बार हम देखते हैं कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है कि कई बार उनसे अगर कोई चीटिंग भी की जा रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए वो उन्हें अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सर्विसेज अच्छी नहीं दी जा रही, फिर भी कंज्यूमर जो है वो उनके उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर हो या फिर उस पर्टिकुलर सेलर हो उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स एटीट्यूड. कहीं ना कहीं वो उन्हें एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड लगती है. तो इसीलिए कई बार कंज्यूमर जो है वो खुद अपने खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट वो लड़ना नहीं चाहते. तो इसीलिए कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. कंज्यूमर एजुकेशन में कंज्यूमर के जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म में उनको अवेयर किया जाता है उसके बारे में. तो कंज्यूमरिज्म, दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज negligence for safety rights. Supply of electricity, water,
road, etc. facilities are provided by the local government. He has to pay taxes for the same. It can be said that a person purchases such facilities by paying taxes to local body. But these facilities are not good. Every citizen has a right to safety, but due to negligence in providing such facility, his right to safety is break. It is expected from the consumerism to protect the right of safety of consumerism. जब हमने कंज्यूमरिज्म का मीनिंग देखा तो वहाँ पे हमने देखा कि कंज्यूमरिज्म मीन्स प्रोटेक्ट टू कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस डन बाय मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स. तो कई बार जो है कंज्यूमर का जो मेन राइट है दैट इज़ द सेफ्टी राइट, वो कहीं ना कहीं उसका निग्लिजेंस जो है वो बेसिकली किया जाता है. कई बार जो है राइट ऑफ कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर का जो बेसिक राइट है वो उन्हें अच्छे से नहीं मिलता. तो इसीलिए जो कंज्यूमरिज्म है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कंज्यूमर के जो भी राइट्स है वो जो सेफ्टी राइट्स है वो उन्हें अच्छे से मिल सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर. The goods are produced in India are to be exported after fulfilling the needs of people in India, but under the international pressure, goods are exported to European customer. Consumerism helps to create awareness of such pressure. Such expectations are to be fulfilled by the consumerism in India. So अगर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर की, तो कई बार हम देखते हैं कि इंडिया में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. बट दैट टाइम जो है वो एक तरीके का इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो होता है, और उस प्रेशर के अंडर जो है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कस्टमर्स को गुड्स जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट किए जाते हैं. सो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म जो है वो कंज्यूमरिज्म हेल्प करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में अगेंस्ट दिस प्रेशर. सो इसीलिए कंज्यूमरिज्म जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर को अवेयर करने में अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म दैट इज़ द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. Consumers in India are not organized. They do not come together and fight for their rights. Everyone is busy in his own work. They does not get time and interest to fight for their rights. The main thing consumerism can do to bring the consumer under the one head and fight for their rights. कई बार हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई चीटिंग भी की जा रही है, उनके खिलाफ कोई एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, तो भी कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करने से डरते हैं, या फिर वो उनके अगेंस्ट जो भी चीटिंग की जा रही है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाते. दैट इज़ द और उसका बेसिक रीज़न ये है कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइज कंज्यूमर. कई बार जो है कंज्यूमर को खुद को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या है. कई बार हम देखते हैं कि अगर वो कुछ कंज्यूमर्स के साथ जो है वो गलत तरीके से बर्ताव किया जाता है सेलर्स की ओर से, मैन्युफैक्चरर्स की ओर से. जो MRP है उससे ज़्यादा प्राइस जो है वो उनसे चार्ज की जाती है. उन्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनी प्रोडक्ट तो वो इन्फॉर्मेशन उन्हें अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती. कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स है उन्हें सीरियसली कंसीडर नहीं किया जाता. अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो उसका बिल उन्हें नहीं दिया जाता. तो ऐसे कई सारी गलत बातें जो है वो कंज्यूमर के साथ होती है, पर फिर भी कंज्यूमर जो है वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, कंप्लेंट फाइल नहीं करते, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस. और साथ ही साथ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइज कंज्यूमर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता. कई ऐसे कंज्यूमर है जिनके पास टाइम नहीं होता, या फिर वो उनके साथ जो गलत चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ फाइट करने में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते. सो बेसिकली ये एक अनदर रीज़न है जिसकी वजह से जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है. सो दैट्स वाई
कंज्यूमरिज्म जो है वो कंज्यूमरिज्म इन ऐसे और कंज्यूमर को और एक हेड के अंडर लाने का काम जो है वो करता है, और उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उन्हें रोकने का काम, उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम जो है बेसिकली कंज्यूमरिज्म में किया जाता है. नाउ द next rationale, that is the right to control pollution and fundamental needs. It is a fundamental right to every person in India to have a pure water, air and nutritious food and healthy services. In the same way, they has a right to live pollution free. Such rights can be protected by the consumerism in India. अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की, तो कंज्यूमर राइट्स में ये कंज्यूमर राइट है कि टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड फंडामेंटल नीड. एक अच्छा प्योर वाटर, एयर एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्थ सर्विसेज जो है ये मिलना एक कंज्यूमर का जो है वो बेसिक राइट होता है. और ये राइट मिलने में कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जो ये राइट है उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कंज्यूमरिज्म के थ्रू किया जाता है. सो बेसिकली दिस ऑल आर द रैशनल ऑफ consumerism. Now we discuss our next point, that is the importance of consumerism. If we discuss the importance of consumerism, we can discuss the four important thing in that. First, that is the to reduce malpractices and to remove unfair trade practices. Second importance is beneficial to manufacturer. Third, importance of consumerism, that is the relationship marketing. And the fourth importance of consumerism, that is the maximization of wealth and profit. Now we discuss this importance of consumer one by one. First importance of consumerism, that is the to reduce malpractices and to remove unfair trade practices. Consumerism may establish proper check over malpractices such as adulteration, price hike, artificial scarcity and black marketing. Due to network of strong consumer association and representation of consumer in business, committee remove unfair trade practices. So businessmen cannot economically exploit consumer by unrealistic increase in prices. So basically कंज्यूमरिज्म की अगर कंज्यूमरिज्म के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो दिस इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंज्यूमरिज्म की वजह से जो मल प्रैक्टिसेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस होती हुई दिखाई देती है. जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म. सो बेसिकली कंज्यूमरिज्म जो है वो ऐसी अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाने का काम जो है वो कंज्यूमरिज्म के थ्रू किया जाता है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इन बिजनेस, तो ये कहीं ना कहीं उन पे कंट्रोल करती है और कहीं ना कहीं हमें इसका ये इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आता है. तो इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन हो और कंज्यूमर्स बिजनेस में कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हम ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिखाई देती है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म, दैट इज़ द बेनिफिशियल टू मैन्युफैक्चरर. सो इन दैट point, producers are acquainted with proper feedback and information about changes in the requirements of consumer. Moreover, the problem, difficulty, objectives and suggestion of consumer are being communicated to them through the process of consumerism. They can avoid barrier in the smooth functioning of business activity. So we can say that consumerism concept is not only beneficial or not only important for the consumer but also important for manufacturer also. कि कई बार जो है वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई उनको अगर फीडबैक चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स चॉइसेस, तो कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है
वो कहीं ना कहीं उन्हें कंज्यूमरिज्म के थ्रू जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करेंगे, तो अगर वक्त पे उन्हें फीडबैक हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के लाइक डिसलाइक्स हो, कंज्यूमर के कोई सजेशन हो, ये सारी बातें अगर उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम पे अगर अवेलेबल होती है, तो वो अपने प्रोडक्शन में जो है वो बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं और वैसे प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को अवेलेबल करके दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल जो है वो साबित होता रहता है। सो इसीलिए कंज्यूमरिज्म जो है वो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही ना सही, बट आल्सो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म, दैट इज़ द रिलेशनशिप मार्केटिंग. Consumerism lead to marketing relationship where interpersonal and coordinal relation are created between the marketer and consumer. कंज्यूमरिज्म जो है बेसिकली क्या करती है, तो जो कंज्यूमर है उनके कंज्यूमर्स एंड मार्केटर्स जो है वो बेसिकली उनके अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म के थ्रू जो है वो बेसिकली किया जाता है. सो सिमिलरली इट आल्सो एनकरेज सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग based on mutual understanding, exchange of views and ideas, and construction of concrete conclusion for the benefit of the businesses and society as well. So we can say that consumerism जो है एक healthy, एक अच्छी relationship जो है वो maintain करती है between marketers and consumers. Now the next importance of consumerism, that is the maximization of wealth and profit. So consumerism is caution about protection of its own interests, and therefore better quality products and services are consistently available for the maintaining good health of the people. It maximize profit for the company as it is render prompt services by providing products on time. All these lead to maximization of national wealth. सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे कंज्यूमरिज्म की, सो कंज्यूमरिज्म जो है, कंज्यूमरिज्म की वजह से कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता है, कंज्यूमर के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं. हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म मीन्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट फ्रॉम दी अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस डन बाय मैन्युफैक्चरर्स और सेलर. सो इसीलिए कंज्यूमरिज्म की वजह से जो है वो कंज्यूमर के राइट्स जो है उससे प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प होती है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेटर सर्विसेज जो है वो कंस्टेंटली कंज्यूमर को अवेलेबल होते हैं ऑन टाइम. So basically this is the main important thing for consumer, and it maximize profit for the company as well as it is render prompt services by providing product on time. ना कि ये सारी बातें जो है वो ना कि सिर्फ उस कंज्यूमर के लिए बट आल्सो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर टाइम पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करके दिया जा रहा है तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ होगी, और जितनी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी उतना ही बिजनेस जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा. तो ऑल दिस लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल वेल्थ. ये सारी एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल वेल्थ को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करती है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कसिंग rationale of consumerism, and in that concept we were discuss organizing program for literacy. Second rationale of consumerism we will discuss eliminate number of middleman. consumerism क्या करता है, जो नंबर ऑफ मिडल मैन है उन्हें एलिमिनेट करने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म में किया जाता है. थर्ड rationale of consumerism we will discuss, that is the effective implementation of law. कंज्यूमरिज्म जो है वो ये मेक श्योर करता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो, ये मेक श्योर करने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म के थ्रू किया जाता है.
नेक्स्ट रैशनल ऑफ कंज्यूमरिज्म वी विल डिस्कस, दैट इज़ द कंज्यूमर एजुकेशन. सो बेसिकली कंज्यूमरिज्म जो है वो क्या करता है, कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो बढ़ाने का काम करता है, कंज्यूमर को अवेयर करने का काम करता है अबाउट देयर राइट्स जो है. तो बेसिकली कंज्यूमर को अवेयर करने का काम जो है वो कंज्यूमर एजुकेशन में किया जाता है, कंज्यूमरिज्म के अंडर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, दैट इज़ द निग्लिजेंस फॉर सेफ्टी राइट्स. जो कंज्यूमर की जो सेफ्टी राइट्स है उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करे, ये देखने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म में किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, दैट इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेशर. यहाँ पे हमने देखा कि कई बार जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म में किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन दैट लैक ऑफ ऑर्गेनाइज कंज्यूमर. सो बेसिकली कंज्यूमरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो बेसिकली कंज्यूमरिज्म में किया जाता है. एंड द लास्ट थिंग वी विल डिस्कस, राइट टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड फंडामेंटल नीड्स. जो फंडामेंटल नीड्स है वो किस तरीके से कंज्यूमर को अवेलेबल हो सकते हैं, उसके लिए कंज्यूमरिज्म जो है वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट आज हमने जो डिस्कस किया, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म. एंड इन दैट पॉइंट वी विल डिस्कस फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म, दैट इज़ द टू रिड्यूस मल प्रैक्टिसेस एंड टू रिमूव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म की वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म जो है वो ये मल प्रैक्टिसेस जो हो रही है या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है मार्केट में, उसे रोकने का काम जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस वी विल डिस्कस, दैट इज़ द बेनिफिशियल टू मैन्युफैक्चरर्स. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म जो है वो नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर बट ऑल्सो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है वो यहाँ पर करता है. बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चरर्स को जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर के थ्रू उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वी विल डिस्कस हियर रिलेशनशिप मार्केटिंग. जो कंज्यूमरिज्म है बेसिकली एक अच्छी एंड हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बनाने का काम करती है बिटवीन मार्केटर्स एंड कंज्यूमर. एंड लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉफिट. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म जो है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ये मेक श्योर करता है कि अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर को अवेलेबल हो सके ऑन टाइम. तो ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिए भी हेल्पफुल साबित होती है और कहीं ना कहीं इन सारी बातों का इफ़ेक्ट ये कि हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है. थैंक यू.